Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, today we will discuss chapter 4 from our book Snapshot. Name of chapter 4 is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. He was born in 1935 in Rochester, New York. Students, let's take an introduction of the characters in this chapter. Number 1, Albert Einstein. He is a student. He is regarded as a dull and problem child. He has a scientific attitude. Next is Mr. Brown. He is the history teacher at Albert's school. Next is Yuri. He is a friend of Albert in Munich. Next, Mr. Koch. He is the mathematics teacher at Albert's school. Next one, landlady, a woman who rented a room in her house to Albert. Head teacher, the headmaster of the school. Next, Dr. Ernest Will, a doctor who specializes in nerves. Next, Ilsa, Albert's cousin. Students, let's take an introduction of this chapter. This chapter is about the well-known scientist Albert Einstein. He is famous for his theory of relativity. But in his school days, he was considered as a dull student. He was not liked by his teachers except Mr. Koch, his mathematics teacher. It was not because he did not pay respect to his teachers, but in spite of this hate, he had a great respect for his teachers. Here, he made plans to get rid of the school because he did not like the school, he did not like the study material provided by the school, and he did not want to stay there. But he know that his father will not allow him to do so. That's why he make a plan to get rid of the school, and he, with his friend Yuri, he arranged a fake medical certificate of nervous breakdown, and at last the school had to expel him. In this way, he got rid of school life. Students, let's discuss the chapter line by line. Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Albert Einstein 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका बर्थ 1879 में हुआ, डेथ 1955 में हुई, उनको समझा जाता है, रिगार्डेड मीन्स क्या है, कंसीडर्ड, कि वो सबसे ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हुए. फिजिसिस्ट मीन्स क्या है, भौतिक वैज्ञानिक. साइंटिस्ट बिलोंग्स टू फिजिक्स, न्यूटन के बाद से. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, नीचे जो अंश है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सर्ट है, पार्ट है, पीस है, उसमें वो लिया गया है द यंग आइंस्टीन से. द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल, जो कि एक बहुत ही अच्छे से जाने गई बायोग्राफी लिखने वाले, जीवनी लिखने वाले पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है. डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल. यहाँ पर वर्णन करता है उन परिस्थितियों का जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल से निष्कासन का कारण बनते हैं, जर्मन के एक स्कूल से निष्कासन का कारण बनती हैं. In what year Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री के अध्यापक ने अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा कि किस साल में जो प्रूशियंस है, प्रूशियंस मीन्स क्या है, पर्सन्स बिलोंग टू पर्शिया, पर्शिया जो कि पहले यूरोप में हुआ करता था, अभी जर्मनी
में है। पर्शियन ने हराया था फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में। फ्रांस वालों को पर्शियन वालों ने हराया था वाटरलू के युद्ध में कब? आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता श्रीमान जी। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। ऑफन इनफ मीन्स क्या? अगेन एंड अगेन, मैनी टाइम्स। आपको ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ श्रीमान जी। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने पूछा, क्या कभी तुमने कोशिश की याद करने की? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी। यूजुअल, यूजुअल मीन्स क्या? ऑर्डिनरी, साधारण, अनथिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अब अल्बर्ट क्या कहता है, मुझे डेट लर्न करने में, जो तारीख है वो लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है, कोई तुक नज़र नहीं आता है। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन ए बुक, कि जब किसी को ज़रूरत हो तो वो डेट्स को देख सकता है बुक में। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन अवाक रह गया, स्पीचलेस हो गया कुछ क्षण के लिए। यू अमेज मी आइंस्टीन, आइंस्टीन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। ही सेड एट लास्ट, उसने आखिर में कहा, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कोई भी ज़्यादातर चीज़ों को ही बुक में देख सकता है? सभी तथ्यों को बुक में देखा जा सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अप्लाइज मीन्स क्या? एप्लीकेबल, जो कि अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है, लागू होता है। जितने भी फैक्ट हैं जो कि तुम स्कूल में सीखते हो वो सभी पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। यस सर, हाँ श्रीमान जी। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर मैं मानता हूँ कि तुम्हें कोई पॉइंट, कोई तुक नज़र नहीं आता है तथ्यों को सीखने में। फ्रेंकली सर आई डोंट, सैड अल्बर्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ओपनली कहता है, श्रीमान जी मुझे कोई भी तुक नज़र नहीं आता है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर बोलता है कि फिर तो तुम शिक्षा में तुम्हारा कुछ विश्वास ही नहीं है। ओ यस सर आई डू। हाँ श्रीमान जी आप सही कहते हैं, मेरा कोई विश्वास नहीं है एजुकेशन में। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। मैं नहीं सोचता कि तथ्यों को लर्न करना, सीखना ही एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्कास्म। उस केस में तो हिस्ट्री टीचर ने बड़ी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सार्कास्म मीन्स क्या है? इन ए वे दैट समवन फेल्ट असेम्ड, किसी को शर्मिंदा करने के तरीके से कहना। Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. शायद तुम इतनी दया दिखाओगे, कक्षा को बताओगे आइंस्टीन की क्या थ्योरी है शिक्षा के बारे में। अल्बर्ट फ्लश्ड, फ्लश्ड मीन्स क्या है? बिकेम रेड विद शेम, शर्म से लाल हो गया। अल्बर्ट शर्मा गया, शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। उसने कहा मेरा सोचना है कि ये फैक्ट नहीं है जो कि कुछ महत्व रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, मैटर करते हैं, परंतु आइडियाज मैटर करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता है कि जो लर्निंग ऑफ डेट्स है, बैटल्स की, युद्धों की तारीख है, वो लर्न करना। और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, या ये सीखना कि किस आर्मी ने ज़्यादा व्यक्तियों को मारा। आई would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, रुचि लूँगा ये सीखने में कि उन सैनिकों ने एक दूसरे को मारने की क्यों कोशिश की, वो एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. बस बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी और क्रूर हो गई थी। We don't want a lecture from you. हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन। You will stay in for an extra period today. तुम्हें आज रहना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए। Although I don't imagine it will do you much good. हाँ, यद्यपि मैं इमेजिन नहीं करता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा करेगा, कुछ बेनिफिट देगा। It won't do the school any good. और ना ही इससे स्कूल का कोई बेनिफिट होने वाला है।
यू आर ए डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स क्या? कलंको, बेइज्जती हो स्कूल की, तुम एक डिस्ग्रेस हो स्कूल के ऊपर। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं जानता कि तुम लगातार क्यों आते हो, स्कूल क्यों आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने इशारा किया, श्रीमान जी मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। अनग्रेटफुल मीन्स क्या? थैंकलेस। फिर तुम तो एक अकृतज्ञवादी लड़के हो। एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता को कहो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल लें। अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल। माइजरेबल कह सकते हैं पुअर, बड़ी दयनीय स्थिति अल्बर्ट की हो गई। When he left school that afternoon, जब वह उस दोपहर स्कूल से निकला। Note that it had been a bad day, इसलिए उसकी खराब स्थिति नहीं थी कि ये बुरा दिन रहा उसके लिए। Most days were bad now, कि अब तो ज़्यादातर दिन बुरे ही आने वाले थे। Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, परंतु उसकी बुरी हालत इसलिए थी कि उसे अगले दिन फिर से स्कूल आना था, उस घृणित जगह पर आना था। He only wished his father would take him away. केवल उसने एक ही इच्छा जाहिर की कि उसके पिता उसे वहाँ से ले जाएं। But there was no point in even asking. परंतु कोई पॉइंट नहीं था, कोई बात नहीं थी कि वह अपने पिता को ऐसा कह पाता। He knew what the answer would be. वह जानता था कि आंसर क्या होने वाला था। He would have to stay until he had taken his diploma. उसे वहाँ पर रुकना ही था, स्कूल में रुकना ही था जब तक कि वह अपना डिप्लोमा पूरा नहीं करता। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स। लॉगिंग्स मीन्स क्या? प्लेस ऑफ रिसाइडिंग, रहने की जगह, रूम कह सकते हो। डिड नॉट चीयर हिम अप। चीयर हिम अप मीन्स क्या? मेक हिम हैप्पी। वापिस अपने रूम पर जाना उसको कोई खुशी नहीं प्रदान कर रहा था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर। स्पेयर मीन्स क्या है? टू अफोर्ड, कि उसके पिता के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इतने कम पैसे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। इसी वजह से अल्बर्ट को एक सबसे गरीब जो क्वार्टर्स थे म्यूनिक में, म्यूनिक एक सिटी है जर्मनी का, वहाँ पर उसको सबसे सस्ती जगह पर सबसे गरीब बस्ती में कमरा दिलाया गया था, क्योंकि उसके पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा महंगी जगह। He did not mind the bad food. वह ध्यान नहीं देता था उस बुरे खाने की तरफ। एंड द लैक ऑफ कम्फर्ट, कम्फर्ट मीन्स क्या? लग्जरी, और जो विलासिता की कमी थी उसकी तरफ भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इवन द डर्ट और स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स भी कहता है डर्ट, डर्टीनेस, जो वहाँ पर गंद था, जो वहाँ पर गंदगी थी, उससे भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस। वायलेंस मीन्स क्या? वायलेंट एक्ट। परंतु वह घृणा करता था जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था उस गंदी बस्ती का, जो कि हिंसा का वातावरण था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। जो मालकिन थी वो आमतौर पर अपने बच्चों को पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीटर। और प्रत्येक सैटरडे को उसके पति आते थे और वो शराब पीते थे और उसकी पिटाई करते थे। बट एट लीस्ट You have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. जब यूरी स्याही के समय मिलने के लिए आया तो उसने अल्बर्ट को कहा कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा तो है, जो कि मैं कह सकता हूँ उससे कहीं अधिक है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. अल्बर्ट ने यूरी को कहा कि कम से कम तुम सिविलाइज, सभ्य ह्यूमन बींग्स के बीच में रहते हो, यद्यपि वो सभी गरीब विद्यार्थी हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने उत्तर दिया वो सभी सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूएल। ड्यूएल मीन्स क्या है? फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, द्वंद्व युद्ध। क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक मारा गया पिछले वीक एक द्वंद्व युद्ध में? एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। और उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था?
नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वास्तव में कुछ नहीं हुआ, यद्यपि उसको तो इस बात के ऊपर गर्व है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. Authorities means क्या? The officials, अधिकारी। उसकी एक ही चिंता है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको कह दिया है कि अब उसे कोई द्वंद्व युद्ध नहीं करना है। He is upset, वह उदास है। About this because he has not a single scar on his face. He has not a single scar. अब उसे अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि उसके फेस पर एक भी घाव का निशान नहीं है। स्कार मीन्स क्या है? ए मार्क लेफ्ट आफ्टर ए वाउंड हील, घाव भरने के बाद जो निशान बच जाता है वो उसके चेहरे पर नहीं है। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर, कि वह अपने बचे हुए जीवन में और उसको बैज मीन्स क्या? साइन, एक निशान के रूप में, सम्मान के निशान के रूप में उसको धारण कर सके। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अफसोस, अल्बर्ट ने आश्चर्य से कहा। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, ठीक है तुम भी एक विद्यार्थी होगे एक दिन, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, मुझे इस बात पर शक है, सेड अल्बर्ट ग्लूमली, ग्लूमली मीन्स क्या? सैडली, अल्बर्ट ने बड़ी उदासी से कहा। I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. मैं नहीं सोचता कि मैं कभी एग्जाम को पास कर पाऊंगा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. उसने यही बात अपनी कजन इल्सा को बताई जो कि अगली बार आई थी म्यूनिक में। Normally she lived in Berlin. आमतौर पर वह बर्लिन में रह रही थी। Where her father had a business, जहाँ पर उसके पिता का एक व्यापार था। I am sure you could learn enough to pass the exams. Albert, अब एल्सा है वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है तुम इतना लर्न कर सकते हो कि एग्जाम को आराम से पास कर जाओ। If you tried, यदि तुम कोशिश करो। She said, उसने कहा। I know lots of boys who are much more stupid than you are. मैं जानती हूँ बहुत सारे लड़कों को जो कि तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं, स्टूपिड हैं, फूल हैं। हु गेट थ्रू, जो कि आसानी से पास हो गए हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं जानना है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें वो सब नहीं समझना है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, केवल इतने योग्य हो जाओ कि तुम उसको दोहरा सको, एग्जाम में रिपीट कर सको। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो परेशानी है। सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट मीन्स क्या? क्रैमिंग, कि मैं रट्टाफिकेशन करने में, चीज़ों को दिल से सीखने में इतना अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरेट, कोई भी एक तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हें ट्राई नहीं करना है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, और फिर भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम अपनी बाजू के नीचे हमेशा एक पुस्तक रखते हो। एडिड एल्सा, एल्सा ने आगे कहा। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन सी पुस्तक है जो तुम हमेशा अपनी बाजू के नीचे दबा करके रखते हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ, कि भूविज्ञान की पुस्तक है। जियोलॉजी भूविज्ञान, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानें और चीज़ें। डू यू लर्न दैट, क्या तुम वो सीख रहे हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में साइंस ना के बराबर पढ़ाई जाती है। हार्डली मीन्स क्या? स्केर्सली। देन वाई आर यू स्टडाइंग इट, फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या यही एक अच्छा सफिशिएंट पर्याप्त रीजन नहीं है कि पसंद होना? एल्सा साइड, एल्सा ने आ भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सी सेड, उसने कहा। बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, परंतु तुम्हारे डिप्लोमा में ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारे पास होने में तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, कि जो पुस्तकें साइंस
के बारे में थी, उनके अलावा उसे केवल आराम मिलता था, अच्छा लगता था, रिलैक्स फील होता था सिर्फ म्यूजिक में। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अनटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वह अपना वायलिन है वो रोजाना बजाता था जब तक कि जो मालकिन है घर की वो उसे बंद करने के लिए नहीं कहती। द वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। वेलिंग मीन्स क्या है? रोना, तेज आवाज में रोना। हाँ, वीपिंग इन लाउड, तेज आवाज में रोने की जब तक जो आवाज है वो मेरी घबराहट का कारण बनती है। शी सेड, वह कहती है, देर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस घर में पर्याप्त शोर शराबा है। विद ऑल द किड्स हाउलिंग, जो बच्चे हैं उनकी गुर्राहट से। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हाउल। अल्बर्ट, टेम्प्टेड मीन्स क्या है? अट्रैक्टेड हुआ, एकदम प्रलोभन आया उसके मन में कि वो बोल दे कि ज्यादातर टाइम तो बच्चे तुम्हारी वजह से ही रोते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, परंतु उसने डिसाइड किया कि अच्छा होगा कि वो चुप रहे, कुछ ना बोले। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ही टोल्ड यूरी, यूरी ने को बताया उसने। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, कि 6 महीने बाद अकेला म्यूनिक में। इट इज absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यह बड़ी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से ही मुझे जाना होगा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और आखिर में यही होगा कि मैं अपने पिता के पैसों को बर्बाद कर रहा हूँ। एंड एवरीवन्स टाइम, और हर किसी के समय को। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, और यह सभी के लिए अभी अच्छा होगा कि मैं अभी ये सब बंद कर दूं। एंड देन व्हाट विल यू डू, और फिर तुम क्या करोगे? यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, यदि मैं मिलन जाता हूँ, मिलन क्या है? इटली में एक प्लेस है, तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, जब तक कि नहीं। हिज आईज ग्लेम्ड, उसकी आंखों में चमक आई। ग्लेम्ड मीन्स क्या? साइन। विद ए सडन आइडिया, अचानक एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आई। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, क्या तुम जानते हो किसी दोस्त डॉक्टर को? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। सेड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर? नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? डॉक्टर नहीं, मैं कभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। क्यों? सपोज, सेड अल्बर्ट, मानो, अल्बर्ट ने कहा, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि जो मेरा नर्वस है, स्नायु तंत्र है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, मनस्थिति बिगड़ जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मानो, समझो कि एक डॉक्टर मुझे कह दे कि स्कूल जाना ठीक नहीं है मेरे लिए। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे ज़रूरत है अभी स्कूल से दूर जाने की, अभी स्कूल छोड़ देने की। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड till page number 27, and next pages we will discuss in next video. Thank you.